now we're going to study the second part of isomerism. Now you know the second part of isomerism, structural isomerism जैसे ही. There's another part called as stereoisomerism. Okay. Now in stereo there are two types. You know it. Stereo में कौन से दो types है? तुम्हारा एक है geometrical और दूसरा है optical. Okay. So stereoisomerism में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे तुम्हारे geometrical isomers. Okay. First we'll study geometrical isomers and after we study geometrical isomers then हम लोग आगे बढ़ेंगे to optical. Okay. Now what is geometrical isomerism? Geometrical isomerism is when the geometry is changed by the position of the ligands. Okay. By changing the position of the ligands does the geometry actually change? तो geometrical isomerism के लिए तुमको एक चीज समझना पड़ेगा that it cannot be a ligand where everything has the same kind of bond angle. मतलब अगर bond angle same हो तो किस बात की ज्योमेट्री? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एक लीनियर कॉम्प्लेक्स की, ओके, सो जस्ट इमेजिन कि इसके ये साइड में एक लिगेंड है और ये साइड में एक लिगेंड है. ओके, सो भाई इसको मैं ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, ऐसे रखूं, कैसे भी रखूं, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द ज्योमेट्री. लेट्स अज्यूम ये ए है, ये बी है, ये अलग है, ये अलग है, ये क्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन क्लोरीन है, कैसा भी रखो कुछ चेंज नहीं आएगा. सो देयर कैन नॉट बी अ चेंज इन द ज्योमेट्री इफ the bond angles are same, or I'll say if it's a planar structure. Agar if it's in one plane then it will be difficult to change. Okay, so bond angle is very important. If the bond angle is same you cannot do anything. Like for example linear है तो भाई linear को ऐसा लिख या ऐसा लिख सेम ही होने वाला. इनफैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर, अगर हम लोग देखें ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर को, मैं एग्जांपल के साथ तुम लोग को समझाता हूं. ट्राइगोनल प्लेनर में अगर हम लोग ने ये एग्जांपल लिया था भाई, राइट, तो हम लोग देखते हैं कि यार ये जो व्हाइट है ये रेड के बाजू में और ये व्हाइट के एक बाजू में रेड है, एक बाजू में रेड है. अगर मैं व्हाइट की पोजीशन चेंज करके कोई भी जगह पे लाता हूं तो क्या होगा, इट विल ऑलवेज हैव ये साइड में भी रेड, ये साइड में भी रेड. सो इट इज द सेम थिंग, किधर भी लगा सेम ही होने वाला है, क्योंकि बॉन्ड एंगल बिटवीन द लिगेंड्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम. यहां पे 120, यहां पे 120, इसको इधर लगा दे 120 120, किधर भी लगा दे 120 120. सो इफ द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू रिमेन द सेम, might as well say there will be no geometrical isomerism. Okay, similarly when I talk about a tetrahedron also, so even in a tetrahedral structure तेरा bond angle is always the same. तो तू यहां से यहां लगा दे, कहीं पे भी लगा दे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेट्राहेड्रन ले लूं और उसमें मैं चार, ओके, लेट मी जस्ट make the structure first. So there are two ligands already there, all right. So what I'm going to do is I'm going to add the third ligand, then I'm going to add the fourth ligand. Now does it really matter कि ये fourth ligand कहां पे है? उसके हमेशा तीनों बाजू में कौन होने वाला है? white ligands होने वाला है. इसको मैं इधर से निकाल के इधर रख दूं तो भी घुमा फिरा के the geometry will always remain the same. भले आपको लग रहा है करके ज्योमेट्री बदल गई है, बट बदली नहीं है. इसको मैं ऐसे कर दूं तो सेम ही रहेगा, कैसे भी कर दूं the geometry will remain the same. So tetrahedral structures also will not show any geometrical isomerism. Okay, now why is this so? Because the bond angles remain the same. Now what the hell do I mean bond angle remain the same? Because हमने तो पढ़ा है octahedral के लिए bond angle remains 90 degree. Not with every ligand concerned. Okay, any geometrical ligands, only दो बताएंगे. एक होगा square planar and the other one would be octahedral. Okay, now before I start with square planar, let's take an example of square planar. हम लोग ने example लिया MA4, मतलब an example is NiCl4. Okay, so उस केस में क्या होगा कि there will be 4 ligands attached to it. Okay, स्क्वायर प्लेनर में तुम लोग को मैंने ऑलरेडी बताया इट इज अ स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर. ओके, आई एम होपिंग तुम लोग को मालूम है एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा. सो भाई देखो ऑलरेडी मैंने 3 लगा दिए. ओके, चौथा जिधर भी आए इधर आएगा. ओके, इसको चेंज करके तुम कुछ भी कर लो, द लिगेंड विल ऑलवेज हैव द सेम ज्योमेट्री, यू कैन नॉट चेंज इट. बट व्हाट हैपेंस व्हेन one is added? Okay,
वन इज एडेड, नथिंग हैपेंस, बिकॉज बाकी तीन जगह पे द रिमेनिंग, मतलब ये जो ग्रीन है इट हैज अ 90 डिग्री एंगल विद दिस व्हाइट, it has a 90 degree angle with this white and a 180 degree with this white. 90 but 180. So if I change positions, will something happen? No, because तीन सेम है और एक अलग है. मैंने पोजीशन चेंज कर दिया, फिर भी 90 with the white, 90 with the white and 180 with the white. But what happens when there are two, not one, two different? Let's say these two are oxygen and these two are chlorine. तो भाई एक एंगल ऐसा है जहां पे क्लोरीन और क्लोरीन में 180 डिग्री एंगल है, और एक ऐसा भी हो सकता है वेयर आई जस्ट चेंज दीज टू पोजिशंस एंड आई गेट इनटू अ सिनेरियो वेयर देयर इज अ 90 डिग्री इन क्लोरीन एंड अ 90 डिग्री इन ऑक्सीजन. तो चेंज हुआ ना, पहले 180 था अभी 90 है. So just by seeing the structure we get the idea that there are two types of possibilities. Na4 में नहीं होगा, Ma3b में भी नहीं होगा, but A2B2 में होगा. Now A2B2 might have a positive charge or a negative charge, कुछ भी हो सकता है. Like NiCl2O2 will definitely have a negative charge, but NiCl2 with NH3 twice will have no charge. Would be right? So it could be N plus, it could be minus, it could be zero, whatever it is. It has two types of structures where there is one that is opposite to each other and another which is besides each other. When there is an thing opposite to each other, it is called trans, and when there is besides, it is called cis. So this is the trans isomer and this is the cis isomer. The entire thing will have a N plus or minus charge. Okay, I'm hoping आपको समझा. This is the complex we are talking about. We are not talking about the ions outside the complex. इसीलिए it can be a positive ion or a negative ion, right? The examples I gave you, NiCl4 हो सकता है, NiCl2 Br2 हो सकता है. So your first example is A2B2 and it has trans and it has cis. The second most common could be when A2 ho, Ma2 ho, and it can be B and it can be C. Okay, now the structure is very simple. तुम्हारा यही इसमें मान लो इसको मैंने निकाल के I replaced it with something else. Now this could be nickel or platinum, ammonia, दोनों white के ammonia, and this could be a chlorine and this could be a bromine. Okay, now this is where these two are in cis position and this is the position in which they are in trans position, if you can see. So there are again two where there is a cis possibility, there is a trans possibility. Okay, तो ये है cis and there is trans. I'm hoping तुम लोग को draw करने तो जमेगा, इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो यहां पे मैंने एग्जांपल क्या दिया था, NiCl ट्वाइस का और अमोनिया ट्वाइस का. NH3 ट्वाइस बोला था, चलता है, कुछ भी चलता है. ओके, राइट. यहां पे मैंने एग्जांपल तुम लोग को चेंज करके क्या दिया, NiNH3 तो ट्वाइस है बट इसमें Cl भी है, Br भी है. ओके, नाउ देयर कुड बी वेरिएशंस ऑफ इट, लाइक MABCD भी हो सकता है. नाउ इन MABCD how many ligands can be there or how many types could be there? M, A ऊपर रहेगा, B इधर रहेगा, C इधर रहेगा, D इधर रहेगा. एक पोजीशन ऐसा हो सकता है कि M A इधर रहेगा, B बाजू में नहीं रहेगा, B ऑपोजिट में रहेगा, C and D. और एक और पोजीशन ये हो सकता है जहां पे M A ऊपर ही पकड़ते हैं हम लोग, और इंस्टेड ऑफ B and C there would be a D in opposite. Okay, सो अगर B को हम लोग कॉमन पकड़े तो B के ऑपोजिट D है, B के ऑपोजिट A है, B के ऑपोजिट C है, ये भी पॉसिबल हो गया. D को अगर हम लोग कॉमन पकड़े, D के ऑपोजिट A, D के ऑपोजिट C, D के ऑपोजिट B, मतलब सारे हमने प्रोबेबिलिटीज एग्जॉस्ट कर लिए. तो देयर आर 3 आइसोमर्स इन दिस, बट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस यूजुअली कम फ्रॉम दिस टाइप. ओके, वी आर गोइंग टू स्टडी द मोर कॉमन वंस. ओके, similarly, if I talk about another type of ligand, there could be a MAB twice. Okay, MAB twice में क्या होगा कि ये जो M है उस पे A
उस पे एक लिगेंड ऐसा अटैच्ड होगा, where this side is the A side, this side is the B side, and there could be a scenario where this is the A side and this is the B side. तो अगर हम लोग देखें तो B और B जो है बाजू बाजू में है, तो this would be the cis isomer, and there is an opportunity where B and B can be in the opposite ends of the spectrum. Okay, so A side यहाँ पे, ये B side है तुम्हारा और ये A side है. तो अगर हम लोग देखें A opposite में है तो this would be your trans isomer. So there are two isomers here, cis and trans again. So these are the different types of options. Most common would be AB. मतलब क्या? AB is a bidentate, but it's not a symmetrical bidentate. It is a asymmetrical bidentate. Okay. Symmetrical bidentate में क्या होगा? A और A ही होगा. तो A इधर क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता. बट अगर A और B अलग अलग है तो it could be a difference. Okay. So इसीलिए asymmetrical bidentate is called AB ligand. All right. I am hoping कोई डाउट नहीं है. हम लोग आगे बढ़ते हैं towards the octahedral structures. Okay. When I talk about octahedral structures, okay. So यहां पे हम लोग इसको खत्म करते हैं, स्पेस लगेगा मुझे. ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो दी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस. बस फर्क क्या है कि अब 4 के बदले 6 बॉन्ड होंगे. और आपको स्ट्रक्चर तो पता है, 6 बॉन्ड किधर होगा? ऑक्टाहेड्रल में तीनों एक्सिस में होता है. इट कैन बी इन फ्रंट ऑफ यू, बिहाइंड यू, लेफ्ट, राइट, ऊपर और नीचे. सो दैट इज द 4 बॉन्ड्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. ऑलराइट. Let's assume when there are all 6 are the same. If all 6 are the same, guys, do you think there will be any type of geometry here? Absolutely not. I don't think so. क्यों? क्योंकि यार सब सेम ही है ना, किसको भी किधर भी रख दे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो I don't think even if there is a MA6 there will be no nothing. There will be nothing when there is A5 and 1B. बिकॉज एक बी जो है वो बी किधर भी रहे उसके पांचों साइड में क्या है? ए है. सो इन दोनों में तो डेफिनेटली नहीं आएगा. बट इट विल स्टार्ट व्हेन इट विल बी एम A4 B twice. Like the example here I can take is cobalt, 4 ammonias and 2 Cls. Okay. In that case what happens is there are 4 ammonias and 2 chlorines. So these are the 4 ammonias I'm talking about and these are the 2 chlorines I'm talking about. Okay. So if you can see the chlorines are opposite to each other, right? At the same time chlorine could be besides each other. Now if you remember अगर opposite रहेगा तो 180 degree angle आ रहा है, लेकिन बाजू में रहेगा तो 90 degree angle आ रहा है. So these are the 2 structures. Now how do you draw these 2 structures? Okay, pay attention. You'll have to draw them something like this. M A A opposite में लिख दिया. बाजू में B रहेगा, बाजू में B रहेगा, एक सामने B रहेगा और एक पीछे B रहेगा. और ये टोटल पे क्या रहेगा? एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा. राइट. एट द सेम टाइम ये क्या होगा? ये कौन सा है? आइसोमेरिज्म ट्रांस है. वैसे ही सिस में क्या होगा? सिस में बस फर्क ये आएगा कि M है, ऑपोजिट में A है. अगर यहां पे A है तो यहां पे A है. ऑपोजिट में B है, पीछे B है, आगे B है. ओके. इस पे भी क्या चार्ज रहेगा? N प्लस माइनस. सो देयर आर 2 एग्जांपल्स हियर, सिस एंड ट्रांस. नाउ ऑब्वियसली इसमें ये भी हो सकता है MA4 BC, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी दैट बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, वो तो होना ही है. राइट. We are going to study next type, that is MA3B3. Okay, trans and cis. I'm hoping तुम लोग नोट्स बना रहे हो, पॉज करते करते देखते देखते करना. Okay, next is MA3B3. A3B3 का एग्जाम्पल क्या होगा? कोबाल्ट, CO, H2O thrice, Cl thrice. हो सकता है. So CO H2O thrice है, Cl भी thrice है, तो it's a neutral complex, but it can have isomers. Now when it can be isomers, it can either be a positive negative charge or it can be a neutral one. Doesn't matter. हमको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होता है. जहां पे A तुम्हारे बाजू बाजू में हो, if you see
यहां पे मैंने एक ऐसा ड्राइंग दिखाया है तुम लोग को जहां पे बी और बी जो है 180 डिग्री एंगल दिखा रहे हैं, ए और ए भी 180 डिग्री एंगल दिखा रहा है. ओके, टू मेक इट अ लिटिल इजियर फॉर यू, लेट्स डू दैट. लेट्स हैव दिस स्ट्रक्चर वेयर देयर आर 3 क्लोरीन्स एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स. लेट्स अज्यूम. सो ये 3 क्लोरीन है, ये 3 पानी है. तो अगर तू देखेगा यहां पे, तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 90 डिग्री का भी एंगल है और 180 डिग्री का भी एंगल है. राइट, इफ यू कैन सी 180 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का भी एंगल है. सेम पानी का भी देखेगा तो 180 डिग्री एंगल है और 90 डिग्री एंगल है. तो इसको हम लोग एक अलग नाम देंगे. बट एट द सेम टाइम देयर कुड बी अ स्विच इन द पोजिशंस वेयर this could be 3 water molecules having 90 degree angles. If you see, they are having 90 degree angles. यहां से यहां 90, यहां से यहां 90, यहां से यहां भी 90. And 3 chlorine which have 90 degree angle, 90, 90 and 90. So अगर यहां पे देखिए, सारा क्लोरीन तेरे मुंह पे आ रहा है, फेशियल. सारा वाटर तेरे मुंह पे आ रहा है, facial. So this example would be called facial and this example would be called meridonial. It's a very important name. Remember it. There are 2 isomers. One is meridonial and one is called facial. Facial में क्या होगा, 90 डिग्री एंगल होगा. ओके, इसमें 180 भी होगा और 90 भी होगा. इसमें सिर्फ 90 डिग्री एंगल होगा. मतलब M के A और सामने अगर तुमने ए ड्रॉ कर दिया तो पीछे के साइड में तुमको सब क्या ड्रॉ करना है, बी. ओके, दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ फेशियल आइसोमर. दिस इज योर मेरिडोनियल आइसोमर. अब A3B3 के बाद ऑफ कोर्स इसमें सबसेट भी होगा. क्या होगा, A3BCD भी हो सकता है, A3B2C भी हो सकता है. ओके, बट वी आर नॉट गोइंग टू गेट देयर. We are going to go to the next one where there is Ma2B2C2. Have you heard of a type of isomer? This is, yes, we have heard this. We have drawn this: cobalt, chlorine twice, bromine twice, and NH3 twice. Okay, so in that case क्या हो जाता है? There are 2 of each. So I'm going to try and show you 2 of each type. So A भी है, B भी है, C भी है. All right. Now, if we see closely, A भी है, B भी है, C भी है. This could be one of the positions where B और B में 90 डिग्री है, A और A में भी 90 डिग्री और C और C में भी 90 डिग्री है. या एक ऐसा पोजीशन ऐसा भी हो सकता है जहां पे सब लोग 180 डिग्री एंगल पे है. मतलब C और C दिख रहा है 180 डिग्री एंगल पे, बट ये दोनों 90 डिग्री पे. ऐसा भी हो सकता है ना, जहां पे मैंने इसको ऐसा रख दिया, जहां पे A B 180 डिग्री एंगल पे है, B भी 180 डिग्री एंगल में और C भी 180 डिग्री एंगल में. सो A 180, B 180, C 180. या तो सिर्फ B जो है that is your 180 and the rest are 90. And there is third वाला option where there is only 90. Okay, so you might be thinking 3 आइसोमर बनेंगे. ना 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 ना, 5 आइसोमर बनेंगे. अब ये 5 आइसोमर्स कैसे बनेंगे जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर दिस इज M, A और A ऑपोजिट, B और B ऑपोजिट, C और C ऑपोजिट. ऑफ कोर्स दिस इज द प्योर ट्रांस आइसोमर. एट द सेम टाइम इट कुड बी A एंड A बाजू बाजू में, B एंड B बाजू बाजू में 90 डिग्री एंगल, C और C बाजू बाजू में. बट द थर्ड इज वेयर A और A ऑपोजिट आ गया और B ऐसा आ गया और C और C ऐसा आ गया. ओके, ये और ये ऊपर नीचे सेम है, लेकिन इसको और इसको अगर मैं चेंज कर दूं तो C और C बाजू में आ गया और B और B बाजू में आ गया. दिख रहा है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है. एट द सेम टाइम जैसे A और A ऑपोजिट में था वैसे ही B और B ऑपोजिट में हो सकता है और C बाजू बाजू में हो सकता है और A भी बाजू बाजू में हो सकता है. एट द सेम टाइम दिस कुड हैपन विद C ऑल्सो. C एंड दिस वुड बी A लेट्स से, एंड आगे भी A, बाजू में B और पीछे B. ऑलराइट, सो देयर आर 5 आइसोमर्स. यू कैन क्लिक अ पिक्चर ऑफ दिस. And lastly, to introduce the last type where
I introduced bidentates. Okay, bidentates क्या थे? जहां पे एक ही लिगेंड है बट वो दो बॉन्ड बनाता है. Okay, so the example could be something like MAA twice, B twice. So MAA twice को हम लोग अगर देखें तो let's take this ligand. Okay, and add bidentates. Now जब भी bidentate लगेगा ना तो bidentate ना 180 डिग्री एंगल में नहीं लग सकता है, इधर से इधर ऐसा पूरा नहीं लग सकता है. इट कैन मैक्सिमम अप्लाई टू अ 90 डिग्री एंगल. ओके, सो मतलब अगर यहां पे एक बॉन्ड बना तो उसके 90 डिग्री पे ही बॉन्ड बनेगा, उससे ज्यादा नहीं. एंड एट द सेम टाइम ये अगर यहां पे लगा तो ये क्या होगा, यहां पे लग जाएगा. सो दिस इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल ऑफ M AA twice B2. Got it? But the same thing can happen when you replace one bond from here, take this, put it here, opposite to each other, and you complete these like this. So that there are two possibilities here. When these are opposite to each other or they are besides each other. So these two examples. अगर pause करके थोड़ा पीछे जाओ, you'll identify the difference. The difference is when B and B are opposite to each other and A is something like this. For simplicity, I can also draw it like this. B पीछे ये साइड में, B ये साइड में आगे. Okay? Or it could be something where B and B are besides each other. एंड ए और ए जो है पीछे के साइड में बने हैं बॉन्ड, और ये ए और ए आगे के साइड में बनाया है बॉन्ड. ओके, टू शो द स्ट्रक्चर्स, इसका मैं अगर स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. दिख रहा है तुमको? यहां पे बॉन्ड बना है, यहां पे बॉन्ड बना है, पीछे भी है, आगे भी है. दिख रहा है? आई एम होपिंग यू आर एबल टू recognize that bond. Now if I change just one point here, so what happens is I'm going to show you this one. All right, so if you see here, okay, ये इधर है, ये इधर है, वैसे ये क्या है, आगे की तरफ बना है, मैंने पीछे की तरफ बनाया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, एट द सेम टाइम ये आगे की तरफ बना, सो इट्स नो बिग डील, समथिंग लाइक दिस. ओके, सो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है. आई एम स्टिल नॉट गेटिंग कि मैंने क्या गड़बड़ किया. ओहो, ओके, आई गॉट इट, सॉरी. यस, सेम स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं सो दैट यू अंडरस्टैंड क्लियरली. या, दिस इज इट. सो इफ यू सी हियर, ये ऐसा है, ये पीछे के साइड में है और ये आगे के साइड में. दिख रहा है तुम लोग को? सो दिस इज हाउ यू मेक an MAA twice B2 structure. I hope this has been as much fun for you to learn as much I felt the enjoyment of showing you the structures and teaching you something that you don't have to imagine at all. So make sure you take a good screenshot of this because this is important.